یہ کہہ کیا ساری بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب میرے بندے میرے بارے میں آپ سے سوال کرے تو آپ کہہ دیں کہ میں بہت ہی غریب ہوں۔ ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی غریب وہ مجھے پکارے، خریب ہوں ہاں خرید جی، ہر پکارنے والے کی پکار کو جب کبھی وہ مجھے پکارے قبول کرتا ہوں۔ اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کریں اور مجھ پر ایمان رکھیں، یہی ان کی بھلائی کا باعث ہے۔ اگر 187 روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال کیا گیا، وہ تمہارا لباس ہیں اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیاناتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے۔ اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا۔ اب تم ان سے مبشرت کی اور اللہ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو اور عورتوں سے اس وقت مبشرت نہ کرو جبکہ تم مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ یہ اللہ کی حدود ہے، تم ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ وہ بچیں۔ ہوگا عادل بھائی؟ چلیے ٹھیک ہے، شکریہ۔ تو بڑھیا عادل بھائی؟ شروع کریں گے تفصیل۔ جی ہاں بڑی ہے، اس لیے دو ہی پکڑے اپن آج کے لیے۔ تو رمضان کے روزوں کے اوپر اپن لوگ کنٹینیو کرے تھے لاسٹ کلاس میں، اور اسی کے اوپر جو ہے کچھ اور حکومات، کچھ اور باریکیاں اللہ تعالیٰ جو ہے 187 میں ڈسکس کرے۔ اب یہ جو 186 آیت ہے یہ تھوڑی جنرل بھی ہے اور ذرا گہری سوچنے والی بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں سنتا ہے، کیوں نہیں سنتا، کبھی سنتا ہے کبھی نہیں سنتا، کسی کی سنتا ہے دعا، کبھی دعا کرتے کرتے سالوں بیت جاتے مگر دعا قبول نہیں ہوتی، کیوں؟ کیا ریزن ہے؟ کیا ہم نیک نہیں ہیں؟ یا پھر اگر نیک ہے تو نیک آدمی کی ہر دعا قبول ہوتی کیا؟ ہر ٹائم قبول ہوتی کیا؟ کیا ہے اس کے پیچھے؟ کہ اللہ تعالیٰ سن رہا، نہیں سننا چاہتا ہم جب پکارتے درد سے تکلیف سے؟ اس کے بارے میں ایک جنرل آیت ہے۔ تو اب میں پھر دوبارہ اس کو پڑھتا ہوں۔ تو یہ ایکچولی ایک سوال بن کے بھی آیا تھا رسول اللہ کے سامنے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر منٹ سنتا تو کیسا سنتا اللہ تعالیٰ؟ ایک ساتھ کروڑوں لوگوں کے ساتھ بات کرنا کتنا مشکل ہے، ہر ایک کے الگ الگ سوال رہتے، ہر ایک کے جواب رہتے، ہر ایک کی الگ کیفیت رہتی، ایک ساتھ 2-3 گھر نہیں سنبھال سکتے۔ مطلب یہاں یہ پہ ایک الگ اینگل ریاض میں گھر بول رہے ہیں، تو مطلب ہم لوگ سوچے بھی نہیں تھے کہ ایسا بھی اینگل ہو سکتا بول کے اس کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ العظیم۔ اب سمجھو آپ کا ایک گھر ریاض میں ہے اور ماں باپ کا گھر بھی آپ سنبھال رہے، جیسا عرفان بھی ہے، اپنا بھی فیملی سنبھال رہے اور ادھر ماں باپ کے پر بھی نظر رکھ رہے کہ ماں باپ ان کی امی بزرگ ہے تو ان کی ضرورت کیا ہے، ان کو کام والی ہے نہیں ہے، پھر یہاں پہ ان کے وائف کے لیے ترکاری لائے نہیں لائے، 2 گھروں کو بیلنس کرنا ہی انسان کو کتنا مشکل ہو جاتا۔ سوچو ایسے 10 گھر ہے، آدمی کتنا بزی ہو جاتا کہ بھائی آفس بھی جاؤں، پھر یہ گھر کی ضرورت کیا ہے، وہ گھر کی ایمرجنسی کیا ہے، کتنا انسان کو ایک ٹائم پہ ایک ساتھ اگر سب 10 گھر بولے میرے کو اب بھی چلا کے دو، ایک کو یہ ہو گیا ایک کو وہ ہو گیا، اپن بولتے نہیں ہوتا بھائی، اپنے سے نہیں ہوتا، مگر اللہ تعالیٰ ایک ساتھ ایک ہی منٹ میں کروڑوں مسلمانہ بھی اگر دعا میں رمضان کی رات میں تہجد میں پکارے، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا، سب کو جواب دیتا۔ کبھی جو ہے وہ دعا قبول نہیں کرتا، کبھی دعا قبول کر لیتا، مگر دا پوائنٹ یہ ہے کہ کم سے کم ایک ساتھ کروڑوں مسلمانہ بھی پکارے، الگ الگ سٹیز میں، الگ الگ گھروں میں۔ رمضان میں تو خصوصاً پورا موروکو سے لے کے لیبیا سے لے کے امریکہ سے لے کے آسٹریلیا، انڈیا، ہر جگہ
तहज्जुद के नमाजा होते या लोग रोजा रहते, इफ्तार करते, दुआ करते, कंटिन्यूस चलता रहता। तो आप सोचो कितने लोग अल्लाह को पुकार रहे होंगे एक टाइम पे, एक मिनट पे, अक्रॉस द ग्लोब, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स पे से लाखों, और उनको अल्लाह ताला रेस्पॉन्ड कर सकना, वो चीज को महसूस करना, फिर उसको जवाब देना, ये वन बाय इटसेल्फ ये खुद एक बहुत बड़ी करामत है। ठीक है, अल्लाह ताला बाद में देता नहीं देता वो तो बात की बात है, मगर उनके साथ कम्युनिकेट करना खुद जो है कितना मुश्किल हो जाता है। आप एक फोन पे आप बैठे हुए हैं ऑफिस में, आपको 2 फोन है, तीसरा कॉल, 2 फोनों पे एकदम कॉल आ गए, दोनों को कान पे बात करे, तीसरा और एक कॉल आया तो उठा ही नहीं सकते, क्योंकि आप 2 से बात कर रहे हैं ना, 2 फोनों पे बात कर रहे, तीसरा कॉल कहाँ उठाते? उठाए तो इसको बोलते भाई तू रुक जा, तू रुक भाई, मेरे को दूसरा कॉल, तीसरा कॉल आया, दूसरे वाले को बोलते देखो दूसरा कॉल है तो 2 मिनट रुक भाई, क्या है? 3 कॉलों को हैंडल कर लेना ऑफिस में कितना मुश्किल हो जाता इंस्टेंटेनियस, और अल्लाह ताला कितने लोगों को हैंडल कर रहा देखो। तो अल्लाह ताला का ये पावर, ये ताकत को रियलाइज कर रहा हम लोग, और जो है उससे अल्लाह के पावर को जब रियलाइज करते तो हम अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं है बोल के महसूस करते अपने आप को। तो आयत पढ़ेंगे फिर, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करे, मेरे बंदे मतलब चलो हम लोग जैसे लोग रसूल अल्लाह के पास जाके सवाल करे कि क्या अल्लाह ताला कैसे कितने करीब है, हम यहाँ से दबी हुई आवाज से भी पुकारते तो अल्लाह ताला सुन लेता क्या? यहाँ पे सेलफोन नहीं है, सिग्नल नहीं है, तो फिर आवाज पहुंच जाती क्या? कितना करीब है? करीब का मतलब ये कि अगर हम जबान से भी नहीं अल्फाज नहीं निकाले, मगर दिल से तड़प के कुछ सोचे तो वो भी अल्लाह ताला सुनता क्या? वो सवाल था, जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करे तो आप कह दे कि मैं बहुत ही करीब हूँ। तो अल्लाह ताला बोल रहे हैं, हालांकि तुम होंगे कोई दूसरे कंट्री में, आप रहते होंगे रसूल अल्लाह के पास मक्के में, मदीने में, और आपको भेज दिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यमन में। तो आप यमन में हैं एक सहाबी, और जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिजिकली दूर है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि अब मैं उतना करीब नहीं हूँ रसूल अल्लाह के? अबू बकर, उमर जैसे सहाबियां करीब है, रसूलुल्लाह के पास फौरन जाके बात कर लेते, कुछ कंफ्यूजन हुआ तो फौरन क्लियर कर लेते। मैं करीब नहीं हूँ, मैं दूर हूँ, मगर अल्लाह ताला की शान अलग है, अल्लाह ताला हर बंदे के करीब है। एक और एक आयत आती जिसको जो है ट्रांसलेशन ये है आयत का कि अल्लाह ताला बोल रहे हैं मैं मेरे बंदों के इतने करीब हूँ जितना उनका जो रग रहती नहीं गर्दन की उतना नजदीक हो। मतलब आप मुंह से कुछ भी बोले तो सबसे 1 सेंटीमीटर नजदीक जो है आपका गर्दन आती। अगर गर्दन के पास माइक्रोफोन लगाए या स्पीकर लगाए तो सबसे पहले आवाज यहाँ से कैच होती। अगर आप पैर के पास माइक्रोफोन रखे तो जरा आवाज में दूर ही आती ना। एक बात बताओ, तो सबसे नजदीक जबान से या दिल से आवाज निकलते सुनने वाली चीज गर्दन होती, क्योंकि गर्दन जो है मुंह और दिल के बीच में है। तो जितना नजदीक आपकी ये रगें हैं जिससे आप सांस लेते, जो गर्दन के जरिए जाते, उतने रग जैसा आपके बॉडी के नजदीक हो, मैं भी मेरे बंदे के उतने नजदीक हूँ। मतलब नजदीक का मतलब क्या है? फिजिकली सुनने की कैपेबिलिटी की तो तारीफ की जा रही, मगर मैं ऑलवेज ऑन अलर्ट और ऑलवेज रेडी टू लिसन हूँ कि मेरा बंदा क्या बोला, मेरा बंदा पुकारा क्या, मेरा बंदा कुछ बोला क्या, मेरे लिए जिंदगी लगा दिया मेरा बंदा, मेरी दीन की मेहनत करा बंदा, मेरे हर हुकूमत को फॉलो करा। तो अल्लाह ताला जब उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते तो अल्लाह ताला ऐसा बोलते, कुछ पूछ क्या मेरा बंदा, कुछ तकलीफ है क्या उसको, बस उन्हें आवाज दे, पुकार दे मेरे को, मैं कर देता हूँ, ऐसा टाइप के। तो अल्लाह ताला बोलते मैं उतना नजदीक हूँ, मगर किसको? जो दीन के ऊपर चल रहा, जो अल्लाह के नजदीक हो चुका। फिरौन के लिए तो नहीं है, वो गुनहगारों के लिए नहीं है, जो दीन से दूर निकल गए हैं उनको अल्लाह ताला पलट के नहीं दिखता। तो ये किसके लिए सवाल है? मेरे बंदों के लिए। जब मेरे बंदे मेरे बारे में आपसे सवाल करे तो अल्लाह के बंदों के लिए बात हो रही है कि मैं बहुत करीब हूँ। हर पुकारने वाले की पुकार को जब कभी भी वो मुझे पुकारे मैं कबूल करता हूँ, हर बार मैं कबूल करता हूँ कहते। अब ये देखो, कई बार हम लोग दुआएं करते कबूल नहीं होते, कई बार नेक लोग कहते कबूल नहीं करते, मगर अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं? हर पुकारने वाले की पुकार
کو جب کبھی وہ مجھے پکارے میں قبول کرتا ہوں، اس لیے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھے۔ اب اللہ تعالیٰ بول رہے کنڈیشن ہے، ہر کسی کی نہیں سنتا، کچھ کنڈیشن ہے۔ کیا ہے؟ لوگوں کو بھی چاہیے، رول کیا ہے کہ وہ بھی میری بات مان لیا کرے اور مجھ پر ایمان رکھے، نیکی کے کام کرے تو میں سنتا ہوں، ورنہ میں سننے کی کیپیبلٹی رکھتا ہوں، میرے پاس 100 قبول فیٹ کرنا آ جاتی، کروڑوں لوگوں کی بات سن لیتا ہوں، مگر میں ان کی چیز پھر دیتا نہیں، ان کو ان کے دعائیں قبول کرتا نہیں۔ اب یہ کیوں ہے؟ اس کے اوپر میں 2-3 جو ہے حدیثیں میں آپ کو شیئر کروں گا جو اس ٹاپک پہ رہیں گے۔ ایک بہت ایک اچھا حدیث ہے، بخاری اور مسلم میں ہے، یہ ڈیٹیل میں کہانی جو ہے کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں رہتے، جب بہت ظلم عظیم رہتا اور اللہ تعالیٰ حکم دیتے کہ تلوار نہیں اٹھانا، صبر کرنا، اور صبر میں ہی اسٹرانگ ہوتے، کاٹم کوٹی کر دیتے آسان تھا، مگر رسول اللہ اور صحابیوں کو اسٹرانگ بنانے کے لیے صبر کر سکتے کیا؟ جیسا رمضان کے روزوں میں صبر رہتا نا، کنٹرول، سامنے پانی پینے کے لیے ہے مگر پانی نہیں پیتے، سامنے بریانی کی خوشبو آ رہی، بھوک بھی لگ رہی مگر کھاتے نہیں، کئی کو بولتے کنٹرول، اللہ تعالیٰ سیلف کنٹرول سکھا رہے۔ اسی طریقے سے شروعات کے مسلمانوں کو کہ لوگ جو ہے ایسی ٹائم پاس انجوائے کرنے نہیں آنا، اسلام میں سیکریفائس کرنے آنا، کنٹرول رہنا تاکہ پھر بڑے بڑے قربانیاں دے سکنا بول کے شروع کے دور پہ ظلم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ تلوار اٹھانے کا حکم نہیں دیا۔ تو اس میں اتنے چوڑے ہو گئے کافرہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ فزیکل اٹیک بھی کرتے تھے، صحابیوں کو تو بہت تکلیف دیتے تھے، حضرت بلال اور کئی صحابی، دوسرے صحابیوں کو تو شہید بھی کرے، اور سمیہ وغیرہ جو ہے، یاسر بن عمار جو عمار صحابی تھے، ان کے والد اور ان کے والدہ ان لوگوں کو شہید کرے، کافی ظلم عظیم، مطلب ایس سی ایس ٹی بھی رہتے نہیں، دلتوں سے بھی بدتر کر دیتے، مطلب کوئی مارے توڑ دیے تو بھی کوئی پوچھنے والا نہیں، کیونکہ یہ لوگ طاقتور تھے، کافر ابو جہل ابو لہب کا بہت پاور تھا۔ اس میں سے ایک دن ایک انتہائی کام کر دیا ظلم کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس نماز پڑھ رہے اور سجدے کی حالت میں ہے، تو بولے کہ یہاں کے نوجوانوں کو، انہوں دیکھو نماز پڑھ رہے کعبے کے، ہمارے کعبے کے سامنے، ان کی نماز کو خراب کرو بول کے، تو اللہ کیا کرے، وہ کچرے میں سے جا کے وہ انتریاں اون کے کٹ کے اون کو ذبح کر دیتے، اس کی ہڈیاں پھینک دیتے نا، اور اس کے انتریاں جو رہتے نا وہ نہیں کھاتے تو وہ پھینک دیتے، تو وہ خون وہ کچرا لے کے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے تو ان کے سر کے اوپر ڈالے، سر کے اوپر ڈالے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سجدے میں تھے اور ایک دم اٹھنا نہیں چاہ رہے تھے سجدے میں سے، تو جو ہے اور کوئی بچانے نہیں آئے، تو بی بی فاطمہ چھوٹے تھے، چھوٹے بولتے بھی تھوڑے 10-12 سال کے عمر کے تھے، انہوں آ کے اپنے ہاتھوں سے ہٹائے کچرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف ہوئی کہ میں کسی کا کچھ نہیں کرا، میں خالی بات کرے تو میرے کو روکے بول کے ہاتھ اٹھا کے دعا کرے، یا اللہ ابو جہل کو فنا کر دے، ابو لہب کو فنا کر دے، مغیرہ بن اس کو فنا کر دے، اس کو فنا کر دے بول کے کچھ بڑے بڑے سرداراں جو تھے نہیں 7-8 لوگوں کے نام لے کے، پہلی بار نام لے کے کبھی بدوا نہیں دیتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جنرل بدوا دیتے، اور تکلیف حد سے زیادہ ہو گئی تو نام لے کے جو ہے اے اللہ ان کو فنا کر دے بولے۔ اور ایک صحابی تھے جو جب مسلمان نہیں بنے، یہ سب دیکھ رہے تھے، انہوں وہ 7-8 لوگوں کا جو ہے نامہ یاد رکھے، اور وہ نام یاد رکھ کے دیکھے کہ جب انہوں مسلمان بنے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے تو جنگ بدر میں سب سے پہلے یہ 8 کافروں کے گردناں کٹے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دعا لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دی ان کو، ان کے نام 8 یا 12 جو بڑے سردار، مطلب ٹاپ، ابو جہل ابو لہب ٹائپ کی، مطلب ایسے ویسے نہیں، نیچے لیول کے بیکار گھوڑے پہ نہیں، ٹاپ کی کلاس کے نامہ لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا تھی، وہ لوگ فنا ہوئے، وہ لوگ اسلام قبول نہیں کرے اور انہوں کے گردناں کٹے جنگ بدر میں، اور وہ بہت بڑا دھکا تھا کافروں کو، مگر وہ جو صحابی ابزور کر کے بولتے کہ دعا کرے رسول اللہ مکے میں اور مدینے میں گردن کٹے، اور اس دعا کرنے کے اور دعا قبول کرنے کے بیچ میں 11 سال کا گیپ تھا،
उफ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ 11 साल के बाद में अंजाम ली। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ, नबी, हम और क्या वो भी चीज है? नबियों के सैयद हैं, हम क्या चीज। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बददुआ की वजह से वो लोग को हिदायत नहीं मिली और जो है वो लोग के गर्दन कटे, मगर उनकी दुआ कबूल होने का वक्त अल्लाह ताला कुछ और करे। हालांकि डिसाइड कर दिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ आ गई, ये लोग की गर्दन कटना है, मगर अल्लाह ताला क्या मकसद था उसको, वो इवेंट आने के लिए 11 साल लगे। तो मतलब एक दुआ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 11 साल के बाद में कबूल हुई। तो हाँ, तो मतलब तो आपकी और हमारी भी दुआएं अगर देर से कबूल हो रही तो उसमें कोई मसला नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है। हम ये नहीं समझना कि अल्लाह हमसे नाराज है बोल के, क्योंकि अल्लाह ताला तो रसूलुल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह से तो बहुत खुश थे, उसके बावजूद भी उनको टाइम लगा उनकी दुआ कबूल होने की। तो इससे पता ये चला कि अल्लाह ताला की मसलियतें भी रहती, अल्लाह ताला का काम करने का तरीका भी जो है अलग रहता। और आदिल भाई, एक क्वेश्चन था मेरा। जी बोलिए हबीब भाई। जी आदिल भाई, जब क्या बोलते हैं मोमिन इंसान जब दुआ मांगता है अल्लाह ताला से, तो अल्लाह ताला कैसा भी उसको कबूल करते हैं कहते, तो 3 चीजों में डिवाइड हो जाती कहते, इंस्टेंट आपकी दुआ कबूल हो जाती, या फिर अल्लाह ताला कोई परेशानी है जब आपकी दुआ रख के उसकी परेशानी को दूर करता कहते, और नहीं तो फिर आपकी आखिरत के लिए वो दुआ उठा के रखते कहते। तो हबीब भाई यही हदीस शुरू कर रहा था, आपके जबान से एकदम वो निकली, यही हदीस एक्सप्लेन करने वाला था कि नेक्स्ट पॉइंट पे। तो एकदम सही बोले हबीब भाई, एकदम। और ये हदीस में पहले के क्लास में भी डिस्कस करा था कि जो है दुआएं जो है कबूल हो जाती, अल्लाह ताला उसको दे देते, अल्लाह ताला के अकाउंट में चले जाते, मगर उसको 3 तरीके से उसको स्पेंड किया जाता। या तो फौरन कबूल करते अगर आपके हक में है, आपको फायदा है, इससे गलत आपको नुकसान नहीं हो जाता। दूसरी चीज, यानी तो कुछ वक्त के बाद में, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ वक्त के बाद में हुई, मतलब कुछ हालात, जैसा फॉर एग्जाम्पल ये क्या सूरह कहफ में मूसा अलैहिस्सलाम और खिजर जो है, मूसा अलैहिस्सलाम दीन सीखना चाहते, अल्लाह का कुछ इल्म कि अल्लाह ताला दुनिया कैसे चलाते, अल्लाह की मसलहत कैसी रहती, तो अल्लाह ताला बोलते हैं उनको खिजर से जाके मिलो। खिजर जो एक पैगंबर है, उन्हों ये इल्म अच्छा रखते आपसे। तो मूसा अलैहिस्सलाम बोले वेरी गुड, मैं जाता हूँ, मेरे को अकड़ तकब्बुर नहीं है। हालांकि उन्होंने टॉप 5 साहब पैगंबरों में से है जो दुनिया में अब तक आए, तो टॉप 5 आदम, नूह, मूसा, ईसा और मोहम्मद, ये 5 सबसे बड़े पैगंबर माने जाते हैं, और उन सब में से सबसे बड़े तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इतने बड़े पैगंबर होने के बावजूद भी जब उनको पता चला कि दूसरे पैगंबर के पास भी कुछ अलग तरीके का इल्म है जो मेरे पास नहीं है, तो मैं सफर करके उतनी दूर जाता हूँ। तो अल्लाह ताला बोले वहां पे यमन के पास कोई जगह पे रहते हो, गाँव है, उधर जाओ, उनसे जाके उनके साथ बैठो, खाली ऑडियो डाउनलोड कर लेके मत आओ, उनके साथ वक्त बिताओ, सीखो और साथ सोबत में रहो, ताकि चीजें समझ में आती। सोबत बहुत इंपॉर्टेंट है इल्म हासिल करने के लिए। सोबत में चीजें इजीली डिस्कस होती, पर्सनल डिस्कशंस होते। अब एक क्लास में उतना पर्सनल डिस्कशन नहीं होता, एक जनरल लेवल पे बात करते। मगर सोचो मैं और हबीब भाई अगर हम लोग फॉर एग्जाम्पल अबू धाबी में मिलते हुए दीन की बात करते हुए, कभी चाय पे मिले, कभी खाने पे मिले, तो ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलता पर्सनल पूछने का, डिस्कस करने का, ऑब्जर्व करने का। तो वो इल्म जो है ज्यादा इल्म बेहतर होता कंपेयर टू जनरल ऑडियंस के साथ शेयर किया जाता। ये भी बेहतर है, मगर उसका मजा अलग ही था। तो मूसा अलैहिस्सलाम गए, खिजर के साथ रहे, तो मगर मूसा अलैहिस्सलाम थोड़े शॉर्ट टेम्पर्ड है, गुस्से वाले। खिजर रजी अल्लाह ताला जानते थे उनको, तो उन्हें बोले ये सब चीजें तुमसे समझ में नहीं आती, उसके पीछे लॉजिक समझने की समझ और सबर नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा बोल दिए। मूसा अलैहिस्सलाम बोले नहीं, मेरे को चांस दो। तो उन्होंने बोले 3 गलतियां, 3 बार मुंह खोलने का परमिशन, तीसरी बार अगर तुम मुंह खोल दिए और सवाल पूछे, मैं बोले तक तुम नहीं पूछना, तुम सबर करना, बर्दाश्त करना, एकदम जो है सवाल नहीं पूछ लेना, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना। हाँ मैं सबर करता हूँ बोले। जो है 3 उसमें से एक बार क्या होता, नहीं कर सके, थोड़ा सा इल्म हासिल करे, मगर वही इल्म सूरह कहफ में है। तो जो उसमें सेकंड पार्ट में क्या करते हैं, एक गांव जो उनको खाना नहीं देता, वो लोग सफर करते रहते, रात में पहुंचते। उस जमाने में तरीका था कि होटल नहीं होने की वजह से रात में अगर रुके, कोई गांव पे आए और अनजान लोग है, तो गांव वाले जो है
आपको खाना और रात में सोने की जगह देते फ्री, हम्म, कल्चर ओके था। आज भी इंटीरियर अरबों में था, है अभी भी कुछ बहुत इंटीरियर में चलेगा तो अंडरस्टूड सी बात थी समझो। तो वो गांव वाले कुछ नहीं दिए, भगा दिए, खाना भी नहीं दिए। तो उन्होंने बहुत तकलीफ हार थे, हालत में सर्दी से परेशान थे। तो खिजर बोले कि यहाँ पे एक दीवार टूट जा रही, ये दीवार को अपन रिपेयर करना है ताकि सिक्योरिटी मिलना है गांव को। तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम बोले गांव वाले तो इतने बुरे हैं, हम क्यों करना, तुम करो। बोलते उन्होंने दीवार पूरी अच्छी करे। बाद में मूसा अलैहिस्सलाम इस खिजर बोले तुम सबर नहीं करके पूछ लिया, इसलिए तुम्हारे को मैं रिजेक्ट कर रहा हूँ। मगर इसके पीछे लॉजिक क्या थी मालूम अल्लाह की, वो इस गांव में नेक सालिहीन एक माँ बाप थे जिनका इंतकाल हो गया और उनके पास कुछ दौलत थी, वो इस दीवार के नीचे दफन करे हुए थे और चाहते थे कि अपने आल औलाद जो बच्चे छोटे छोटे उनको मिलना। मगर वो दौलत जो है जमीन के नीचे थी, मगर अल्लाह ताला वो बच्चों को अब नहीं देना चाह रहे थे क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनके मामू चाचा है खींच लेंगे, कोई तो भी कर लेंगे, छोटे हैं ना। इसके लिए अल्लाह ताला चाह रहे कि बच्चे बड़े होना और जवान होना और अक्ल होना, शऊर आना, उसके बाद में उनको दौलत मिलना। तो जब तक दौलत कहाँ रहना, जमीन में दफन रहना, जमीन में दफन रहना बोलते उसके ऊपर की दीवार रहना। तो दीवार अल्लाह ताला रिपेयर करवाए खिजर और मूसा से ताकि वो प्रॉपर्टी दफन रहना, वो गोल्ड कॉइन जो भी है दफन रहना। तो क्यों? क्योंकि बच्चे उस चीज के लिए तैयार नहीं है, दौलत के लिए। उसी तरीके से कई बार हम लोग गलती से दुआएं मांग लेते हैं ऐसे चीजों की जिसके लिए हम तैयार नहीं रहते, ईमानी तौर पे या फिजिकल तौर पे भी। फॉर एग्जाम्पल अपन बिजनेस अब करना चाहते, मगर अब भी बच्चे छोटे हैं या अब भी शादी हुई तो अपने लिए नहीं है ठीक। अपने लिए ठीक है कि अपन शादी होने के 2-3 साल 4 साल के बाद में थोड़ा स्टेबलाइज हो जाते, क्योंकि बिजनेस में उतार चढ़ाव रहते। जो है रेगुलर जॉब अच्छा रहता, वो रिस्क नहीं उठाना। तो अल्लाह ताला तुम्हारे लिए, और तुम मगर दुआ कर रहे कि अल्लाह मेरे को बिजनेस दे दे, बिजनेस दे दे, बिजनेस करना चाहते, मेरे को बिजनेस में आगे बढ़ा। अल्लाह ताला जानते कि तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारे लिए स्टेबल इनकम बेहतर है क्योंकि बच्चे छोटे हैं और तुम नए आए हुए हैं कंट्री में। तो अल्लाह ताला तुम्हारी वो दुआ कबूल नहीं करते। हाँ, 5 साल हो जाने के बाद में तुम स्टेबलाइज हो गए, अब तुम रिस्क टेकिंग ले सकते, तुम्हें एक सेविंग भी है। कल के दिन बिजनेस नहीं भी चला तो तुम घर चला सकते, खर्चों में नहीं आते, मुलव्विज नहीं होते। तो ऐसे चीजों में जब आप तड़प के तहज्जुद में भी दुआ करे और हरम के सामने भी जाके दुआ करे कि अल्लाह मेरा बिजनेस मेरे को खोलना है, मेरे को रुकावटें आ रहे नहीं हो रहे, तो रुकावटें अल्लाह की तरफ से चाह रहे, क्योंकि अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल नहीं करना चाह रहे। आप जो चीज मांग रहे हो वो आपके लिए फायदेमंद नहीं है, मगर आप फ्यूचर नहीं जानते, आप अपने जिस्म को नहीं जानते, आप अपनी जरूरतें नहीं जानते, जिसके वजह से आपको दिख रहा कि आपको जरूरत है, मगर अल्लाह ताला क्योंकि बेहतर जानता, आपसे ज्यादा इल्म रखता, अल्लाह ताला बोल दिए नहीं, दुआ कबूल नहीं करना। या तो नहीं करना या नहीं तो वो दुआ जो है कुछ अरसे के बाद में कबूल करना बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल अपन एक लड़की से शादी के टाइम पे सोचते, कोई कजिन है, कोई खाला की बच्ची है, भाई ये लड़की बचपन से हम पसंद करते थे, हमको इससे शादी करना है, मगर हम दुआ भी करते फॉर एग्जाम्पल, मगर पता चला अल्लाह ताला लड़की की में कुछ कैंसर होने वाला है, आपके शादी के मतलब 2 साल के अंदर उसकी मौत है, या उसकी उम्र नहीं है, या तो कुछ प्रॉब्लम है उसको और आपके लिए ठीक नहीं है, मगर आप फ्यूचर नहीं देखते, आप दुआ करते अल्लाह ताला निकाह करते, मगर अल्लाह ताला निकाह नहीं करते, उससे किसी और से कराते, तुम अफसोस में रहते, अपसेट रहते कि मेरी मर्जी की लड़की नहीं मिली, और 2 साल के अंदर पता चलता कि लड़की को कैंसर था या हयात नहीं थी, या कुछ बच्चे नहीं हो रहे थे, कुछ फिर बोलते अम्मा अच्छा मेरी शादी नहीं हुई बच्चे से, बोलते नहीं बोलते। तो उसी तरीके से हम फ्यूचर नहीं जानते, फ्यूचर तो छोड़ो, आज अपना प्रेजेंट नहीं जानते अपन। तो कौन जानता तुम्हारा फ्यूचर प्रेजेंट? माँ बाप जानते क्या? नहीं, उनका भी इल्म छोटा है। तो कौन है? अल्लाह ताला है। तो अल्लाह ताला जानते कि कौन सी दुआ कब कबूल करना, क्या टाइम पे आपके लिए बेहतर है। हालांकि बोलते अपन फॉर एग्जाम्पल मैं बताया, जो हमारे एक सौंतल अब्बा के सौंतले भाई थे, उनको जो है एकदम बाप का इंतकाल हो गया, और जो है थोड़े बड़े हो गए थे, उन्होंने जवान हो गए थे, मगर उतना ज्यादा मेच्योरिटी नहीं आया था, और उन्होंने उल्टे पुल्टे बिजनेस ना करके बाप का पैसा बर्बाद कर दिया। वही उसके बाद में 40 साल की एज तक जो आए, उसके बाद में थके खा के बिजनेस सीखे, स्ट्रांग हुए उन्हें। तो उन्होंने सोचते थे कि वो दौलत मेरे को जब नहीं मिलती, हालांकि काफी कोर्ट लिटिगेशनों से लड़ झगड़ के उन्होंने हासिल करे थे वो प्रॉपर्टी, बाप की जो कोर्टों में फंस गई थी। तो उन्होंने बोलते थे कि कोर्ट केस और लंबा चलते, वो दुआ मेरी कबूल नहीं होती, वो पैसा जब नहीं आना था अब आना था, तो अब मैं उसको अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता था, मगर आया, चले गया, बर्बाद हो गया। और अब जब समझ आई, और अच्छी समझ आई और इंटेलिजेंट हुआ,
تو پراپرٹی نہیں تھی. تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کبھی جو حبیب بھائی حدیث میں بتائے وہ دعا کبھی کبھی فیوچر کے لیے پوسٹ پون کر دیتے, اور کبھی کبھی وہ دعا قبول ہی نہیں کرتے کیونکہ وہ دعا آپ کے لیے خطرناک ہے. آپ کو بہت پسند ہے وہ چیز, ہو نہ بول کے ہے, مگر آپ کے لیے خطرناک ہے. آپ نہیں جانتے, آپ خالی اس کا پازیٹیو سائڈ دیکھ رہے, مگر اس کا خطرناک نیگیٹو سائڈ آنے والا ہے. وہ چیز آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, آپ کو آسمان سے آواز نہیں آتی, ایک اللہ تعالیٰ دعا قبول نہیں کرتے. تو ہم اپسیٹ ہو جاتے, ارے اتنا دعا کرا ہے, رو تہجد میں بھی دعا کرا, 2 سال کرا, اور دعا قبول ہی نہیں. مگر وہ ہمارے لیے بیکار چیز تھی, اچھی چیز نہیں تھی بول کے ریئلائز کر کے اللہ کے اوپر فیصلے چھوڑ کے دل میں مطمئن اور اطمینان ہو کے یہ چیز میرے لیے بہتر ہے, یہ بیوی میرے لیے بہتر ہے, یہ نوکری میرے لیے بہتر ہے, یہ چھوٹا سا گھر میرے لیے بہتر ہے, بڑا گھر لے کے اچھے کالونی میں جاؤں گا, زلزلے میں گھر گر جا رہا, یعنی تو کورٹ کیس میں کالونی پوری انلیگل لیٹیگیشن میں چلے گئی, ایک پیسہ نہیں آیا زمین سے, اس سے اچھا یہ کالونی کا گھر اچھا تھا, یہ چھوٹی کالونی تھی, میرے کو نہیں رہنا ہے, نکلنا ہے, بدنام کالونی ہے سوچے, مگر بعد میں دیکھے ارے آپ کا بھائی ادھر چلے گیا, انہیں وہ جگہ پہ خرید لیا, مگر اس کا پورا پلاٹ چلے گیا, کیس میں پھنس گیا, تو بولتے اما اچھا میری دعا قبول نہیں, اچھا میں نہیں گیا. تو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات ایسے رہتے, ہم نہیں جانتے. تو ہم کیا کرنا, ٹرسٹ کرنا, بھروسہ کرنا کہ اگر عادل ہم بھائی, اللہ کو ہم راضی. بولیے مزمل بھائی, بولیے. ہاں عادل بھائی, کوئی دعا کر رہے ایک ٹائم پیریڈ تک اور قبول نہیں ہو رہی, کچھ پرٹیکولر ٹائم پیریڈ کے بعد یہ ریئلائز کر لینا کہ شاید یہ بہتری میں نہیں ہے بول کے سٹاپ کر دینا, یا کر سکتے آپ جب تک چاہے دعا کر سکتے, وہی تو اب حبیب بھائی جو حدیث بتائے, دعائیں جو 3 ٹائپ کے وہ بیکار جاتے ہی نہیں. اگر آپ کو نقصان بھی ہے مگر ہاتھ اٹھا کے گڑ گڑا ہے, وہ اتنی بڑی نیکی ہے. دعا خود اتنی بڑی نیکی ہے, اور جو دعا قبول نہیں ہوتی, قیامت کے دن اتنے بڑے نیکیاں پہاڑوں کے بن کے لے کے آتے, اس کا فائدہ اتنا ملتا کہ اپن قیامت کے دن بولتے اے اللہ کاش میری دعا کوئی قبول ہی نہ کرتا اس دنیا میں. تو آپ دعائیں کرو, قبول نہ بھی ہوئی تو بھی آپ کے لیے جو قیامت کے دن بہت فائدہ ہے, وہ بہت کام کے دعائیں ہیں, اس سے بہت فائدہ ہونے والا قیامت کے دن. تو دعائیں کرنا تو نہیں روکنا چاہیے. ہاں اگر آپ کے دل میں آ گیا کہ جو ہے شاید میرے لیے اچھی چیز نہیں ہے, میں روک دوں, بول تو روک دو. نہیں, اگر میں کرنا چاہتا ہوں, شاید وہ چیز بعد میں میرے لیے اچھے بن جاتی, تو کنٹینیو کرو. اور جب تک وہ چیز اللہ تعالیٰ آپ کو نہیں دیے, آپ کو دعا قبول نہیں ہوئی, وہ چیز سامنے نہیں آئی, وہ ویسے بھی نیکی کی کیٹیگری میں جاری, اور ایسی ویسی نیکی نہیں, بہت بڑی نیکی ہے وہ. کیونکہ دعائیں تڑپ کے کی جاتے نا, چلتے پھرتے گاڑی چلاتے ہوئے کوئی دعا نہیں کرتا, بیٹھ کے اطمینان سے روتے اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے کرتا. تو یہ دعا جو ہے ایک حدیث میں آتی عبادت کا جز ہے, اور عبادت کبھی کمزور طریقے سے ہوتی, لوگ چلتے پھرتے باتیں کرتے, تسبیح پڑھتے, دیکھے ہوں گے آپ, ذکرہ کر لیتے, مسجدوں سے چل لیتے, تو ذرا ویک رہتی, اتنی پاورفل نہیں رہتی. مگر جو دعا ہوتی وہ بہت ہی کانسنٹریشن کے ساتھ, اللہ کے ساتھ لگاؤ کے ساتھ ہوتی, تو اس کی نظر, اس کی ویلیو اللہ کے نظر میں بہت ہے. تو اس کے لیے وہ کبھی بھی جتنے بھی دعائیں کرے, وہ جو ہے آپ کو قیامت کے دن بہت کام آتے. مگر اللہ تعالیٰ کو پسند کیا نہیں ہے کہ دعا قبول نہیں ہوئی بول کے افسوس نہیں کرنا اور غم زدہ نہیں ہونا. یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ نہیں, یہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آ رہا, نا امیدی کر رہا ہوں, اللہ تعالیٰ کو کفریت کے جیسے لیول پہ لے کے آتے. تو بغیر کفریت کے اگر آپ کنٹینیو کر سک رہے دعا تو کرو, کوئی اس میں نقصان نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس میں خیر کا ایک معاملہ کرتا. مگر ایک ہم زبان میں کلیئر ہو گیا نا عادل, لیکن یہ دعائیں کنڈیشن, مطلب ہر آدمی کی دعا, یہ جو حبیب پوچھے اور جو مزمل پوچھے نا, تو ہاں ٹھیک ہے. تیسرا پوائنٹ ہے ابھی میں بول رہا ہوں, مگر کئی لوگ دین سے دور ہے اور اللہ کی نفرت ان کے اوپر ہے, اور اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے, اور لوگ سمجھ رہے کہ ہم اچھے ہیں, ہم بار بار دعائیں کر رہے, تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو کے دعائیں کو اٹھا کے رکھنے والا ہے. ایک تیسری کیٹیگری ہے جس میں اللہ تعالیٰ پلٹ کے بھی نہیں دیکھ رہا, کیونکہ آیت کس سے شروع ہوئی, اللہ کے بندوں کے لیے ہے یہ آیت. جو اللہ کے بندے نہیں ہیں, جو اس کے حکم کو نہیں مانتے, جو اس کے چیزوں کو جب سنائے جاتے اور ان سے ریکویسٹ کیا جاتا یہ مت کرو, یہ کرو اللہ کے خاطر, اور منہ پلٹا کے چلے جاتے,
वो लोग जिस तरीके से दीन की बात को मुंह पलटा के चले आते, वैसे लोग जब अल्लाह से दुआ मांगते तो अल्लाह ताला भी मुंह पलटा लेते। मुहावरतन बोल रहा हूं मैं यहाँ पे, अल्लाह ताला भी मुंह पलटा देते, मतलब अल्लाह ताला भी नहीं सुनते, नहीं सुनना चाहते अल्लाह ताला से लोग। तो डर ये है कि ये हम 4th कैटेगरी में तो ना आ गए, हम समझ रहे हम फर्स्ट के 1 2 3 कैटेगरी में है। अभी भाई जो डिस्कस करे, अरे अच्छी कैटेगरी है, नेकियां मिल रहे, दुआ में भी फायदा हो रहा है, अल्लाह हमारी बेहतरी के लिए वो बुरी चीज को हमसे दूर रख रहा है, हम कितने नेक है। ये कैटेगरी में नहीं होकर 4th कैटेगरी में है, तो वही जो है 4th कैटेगरी के बारे में अल्लाह ताला इस आयत के बारे में बोल रहे। यहाँ इस आयत में 4th कैटेगरी के बारे में बोल रहे, फर्स्ट 3 कैटेगरी के बारे में नहीं बोल रहे, वो दूसरे आयत है। तो 4th कैटेगरी में अल्लाह ताला क्या बोल रहे हैं, हम जब भी कबूल करते हैं कि उन लोगों को चाहिए कि वो भी मेरी बात मान ले, मेरे हुक्म की फर्माबरदारी करे। अगर कुरान में आयत उतर गई कि रहम और करम करो, सिला रहमी करो, माफ करो, गुस्सा मत करो, जो है लोग दरगुजर करो, लोग खैरात करो, लोग की तकलीफा कहानियां सुनो, और ये सब आप नहीं कर रहे, और ये सब चीज जब आप बोली जा रही, आप मुंडी पलटा के चले जा रहे, मेरे को नहीं मालूम, मैं नहीं करता, मेरे से नहीं होता, ये टू मच है, इतना सख्त इस्लाम नहीं है बोल के आप मुंडी पलटा देंगे, तो अल्लाह ताला भी बोल रहे कि मैं भी मुंह पलटा देता हूँ। तो ये कंडीशनल है, ये 4th पॉइंट के ऊपर एक आयत चल रही। तो तुम समझो नको, तुम अगर अज्यूम कर ले रहे कि अल्लाह मेरी, जैसा रसूलुल्लाह का एग्जाम्पल दिया मैं, जिन लोगों के ऊपर बदवा दिए अल्लाह ताला उनको फना करे, उनकी दुआएं कबूल हो रही, हमारी भी होती होंगे 13 साल के बाद में, हम नेक है बोलते, पहले अपने गिरेबान में झांक के देखो कितने फर्मा बरदारी करते अल्लाह के हुक्मों को, कितने अल्लाह के हुक्मों को लाइट ले लेते। दिल बोला तो नमाज पढ़ते, दिल बोला तो नमाज नहीं पढ़ते, दिल बोला तो सुनते अल्लाह की बात, दिल बोला तो नहीं सुनते। ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला नहीं बोल रहे। अल्लाह ताला जो शान से बोले, ए रसूल मेरे बंदों को बोलो, जब अल्लाह बोल रहे मेरे बंदे, वो मेरे बंदे बने तो ये सब नेमतें। अगर आप मेरे बंदे नहीं बने, अल्लाह के बंदे नहीं बने, और अल्लाह के बंदे वही बंदे जो अल्लाह की फर्माबरदारी करते, अल्लाह के दीन के लिए जीते, अल्लाह के इस्लाम के ऊपर अमल करना चाहते, छोटी सी छोटी हदीस, छोटी सी छोटी सुन्नत पे अमल करना चाहते, हर बार अल्लाह को राजी करने की कोशिश करते रहते, नए नए तरीके ढूंढते अल्लाह को खुश करने के लिए, और फिर भी मुतमईन नहीं होते, उतने अल्लाह की मोहब्बत में रहते, उतने अल्लाह के पीछे रहते, वो लोगों को अल्लाह ताला की स्पेशल फेवर्स है। ऐसे नहीं होते फेवर्स इस तरीके से। तो अल्लाह ताला वार्न कर रहे, जो मेरी नहीं सुना मैं उसकी नहीं सुनता हूँ, जो मेरी तरफ नहीं पलटा मैं उसकी तरफ नहीं पलता हूँ, जो मेरी तरफ कुर्बानी दे के मेरी बात नहीं सुना मैं उन्हें गिड़गिड़ाए तभी नहीं सुनता हूँ। तो इस सिंपल सा फॉर्मूला है, आप दुआ कर रहे, दुआ आसमान तक जाती, यहीं चटक जाती, 10वें फ्लोर के बाद में लटक के नीचे गिर जाती। तो उसको जैसा रॉकेट है मून तक जाना बोलते, उसको नीचे आग रहना, आग फायर रहना, फ्यूल रहना, तो वो एनर्जी से रॉकेट ऊपर जाता। अगर उसको फ्यूल नहीं है, पेट्रोल नहीं डाले तो रॉकेट कहाँ जाता, जितना फ्यूल है उतना जाता, 1 मीटर जाता, 10 मीटर जाता, 10 फ्लोर जाता। तो अगर अपनी दुआएं आसमान तक जाना है तो उसके नीचे फ्यूल उतना रहना, उसके नीचे उतनी सेविंग रहना, उतने नेकियां रहना, उतने आंसू रहना, उतना जज्बा रहना, तो आपके नेकियों की बदौलत आपके दुआएं अल्लाह तक ऊपर जाते और अल्लाह तक पहुंचते, तो अल्लाह ताला फिर सुनता। जब उसके पीछे बैकिंग इच नहीं है तो फिर कैसा ऊपर तक जाएगी वो बात हो। हाँ, हम कर ले रहे, हम दुआएं कर ले रहे, सालों से कर ले रहे, मगर उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है। तो ये थी आयत की तफसीर। तो नेक्स्ट आयत पकड़िए, कुछ सवाल है? नहीं, कुछ सवाल तो नहीं है। अब कोई फॉर एग्जांपल कोई अल्लाह ताला उसको जो माशाल्लाह तरक्की दे रहा, तो और जो है सो हम कभी ये सोच लेते कभी मेरी दुआ कबूल नहीं हो रही, उसकी दुआ कबूल हो रही, तो ऐसा कंपैरिजन अपन कर सकते क्या? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो, क्योंकि कई बार अल्लाह ताला सामने वाले को तरक्की दे रहा, दौलत दे रहा, ताकि उसको अजाब देने के लिए, उसको अकड़ और तकब्बुर में मरने के लिए, छोड़ने के लिए करा अल्लाह ताला। हम नहीं जानते अल्लाह ताला क्यों दिया, हम नहीं जानते, लेकिन हम अफसोस नहीं करना, तुम जैसा बोले, हम अफसोस नहीं करना, क्योंकि हमको नहीं मालूम अल्लाह ताला वो अजाब होगा,
तुम समझ रहे कितना लकी है, देखो इन्हें जाम मिट्टी पे हाथ लगाया सोना बन जा रहा, भाई हर दुआ कबूल हो रही, भाई अल्लाह का कितना चाहता हूँगा। देखो बोलते हम नहीं है समझते, ऐसा कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला उसके साथ अलग तरीके से हैंडल कर रहा होगा। हो सकता जो है कि अल्लाह ताला उसको जो है तबाह करना चाह रहा, उन्हें फिरौन की जैसी फितरत है, उसको अल्लाह ताला जितने बार भी हिदायत भेजे तो भी उन्हें पलट के नहीं देखा, अपनी जिंदगी वैसी जिया, वैसी खाता पीता सोता नौकरी करता था, दीन के लिए कुछ भी नहीं करा, तो अल्लाह ताला उसको गिव अप कर दे के उसको जो है होपलेस, अल्लाह उससे दूर हट के उसको दौलत में मुलविस कर दे रहे ताकि उन्हें दौलत में एंजॉय करते हुए मर जाना, और अल्लाह ताला खुद भी नहीं चाह रहे कि उन्हें दीन के ऊपर पलटना पड़े। तो उसके साथ अल्लाह ताला का स्ट्रैटेजी कुछ अलग चल रही होगी, हम समझ ले रहे कि उन्हें कामयाब है, कितना है, काश हम भी, हमारे को भी उसकी जिंदगी मिलती। इसकी बेस्ट एग्जांपल क्या है, हारून बोल के एक आदमी था, बनी इसराइल का था हालांकि, मगर फिरौन का समझ गया था उन्हें, और दुनिया में सबसे बड़ा पैसे हारून बोल के, दुनिया का वर्ल्ड रिचेस्ट मैन, एडवाइजर नहीं, फाइनेंशियल एडवाइजर था, फाइनेंशियल मिनिस्टर था, और खुद का उसका बहुत बड़ा बिजनेस, और फिरौन उसके ऊपर राइट हैंड रख दिया था और उन्हें गद्दारी करा था। बनी इसराइल का रहने के बावजूद भी बनी इसराइल के लोगों को गुलामी में बेच के पैसे कमाता था, गलत वलत करता था, जो भी है उसके बाद में जो है बुरा इंसान था, मगर इतना पैसा कमाया कि कुछ हदीसों में आता कि उसके खजानों के चाबियां लेके जाने के लिए ऊंटा होते थे, उतने खजाने, उतनी बड़ी आर्मी रखता था उन्हें अपने खजाने की हिफाजत करने के लिए। किंग क्यों उतना पावरफुल था उन्हें, इतना बड़ा हारून था उन्हें। तो एक दिन ऐसी करते उन्हें स्ट्रीट में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के सामने, बनी इसराइल के जो नेक लोगों के सामने, ऐसी मार्केट में एक बार आया करते अपना एंटोराज ले लेके, अपने नौकर चाकर और बेहतरीन कपड़े, इतर परफ्यूम मारते हुए, ऊद का धुआं देते हुए ऐसी मार्केट में एंटर करा करते, बेहतरीन कपड़े पहन के, गोल्ड की जेवल डाल के वॉक, मॉर्निंग वॉक को निकला था। तो उसकी दौलत, उसके नौकर के देख के कई नेक मुसलमान जो गरीबी में थे, तुम्हारे जैसा एकदम, जो तुम अभी एग्जाम्पल दे रहे, अफसोस करने लगे, अरे हम दीन की बात करें, हम इतने गरीब, इन्हें देखो दीन के ऊपर उतना नहीं है, ऐसी है, और इसको कितना पैसा दिए, शायद अल्लाह ताला इसको बहुत चाहते होंगे, कितना लकी होगा, काश मेरे को उसकी जिंदगी मिलती, उसके जैसा मेरे को बना दिए। खत्म, उसका टाइम खत्म हुआ, अल्लाह ताला जो है अजाब नाजिल करे, और एकदम जमीन खुली और उन्हें अर्थक्वेक के अंदर गिरा, उसके साथ उसकी दौलत, उसके ऊंटा, उसके चाबियां पूरे धसन हो गए, और एकदम जमीन का अर्थक्वेक बंद हुआ। एकदम 2 मिनट में ये नजारा देख के जो बनी इसराइल के गरीब मुसलमान एकदम बोले, तौबा तौबा तौबा, अल्लाह अच्छा करे हमारे को वैसी जिंदगी नहीं दिया, हमको वैसी जिंदगी नहीं होना, जो हमारे को दिया बेहतरीन दिया, अल्लाह हम खुश है, हमको उसकी दौलत न को, उसकी इज्जत न को, उसकी प्रॉपर्टी न को, हम अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं बोल के रियलाइज करें। तो अल्लाह ताला इस तरीके से करने वाले के अजाब देने के लिए भी दौलत दे सकता है, वो हम लोग रियलाइज करना। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरों को एक ही तरीके से गिनते, कई बार कुछ मुसलमान कमजोर रहते और दीन की तरफ उतने अट्रैक्ट नहीं होते, हालांकि पोटेंशियल अच्छे रहते, तो जब शरीफ रहते तो अल्लाह ताला जब उन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए थोड़ी दौलत ज्यादा भी देता, ताकि वो लोग कमजोर दिल के हैं, वो दौलत की खुशी में अल्लाह मेरे को दौलत दिया, अल्लाह मेरे को जॉब दिया, अल्लाह मेरे को ये दिया बोल के कुछ मुसलमान अल्लाह की तरफ मोहब्बत बढ़ती और अल्लाह से मोहब्बत ज्यादा करते, और वो उनके बिहेवियर को मैच करता। तो कई बार अल्लाह ताला ऐसे कमजोर मुसलमानों का ईमान बढ़ाने के लिए, अल्लाह से मोहब्बत पैदा करने के लिए भी दौलत देता, मगर दूसरों को नहीं देता, मुसलमानों को नहीं देता, क्योंकि वो लोग सब्र करके जन्नत हासिल करते, वो लोग खुद अपने दम से जाने वाले, उनकी जन्नत आला जन्नत रहती, मगर थोड़े कमजोर मुसलमानों को कामयाबी देता, सक्सेस देता, ताकि वो लोग अल्लाह से मोहब्बत रखना बोल के। तो हर एक के साथ अलग अलग चल रहा भाई, हर एक के साथ अलग अलग इक्वेशन है, हम नहीं कंपेयर, स्टडीज नहीं कर सकते, हम अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते, तो इनका उनका छोड़ो, हम अल्लाह से नजदीक है, हमारे दुआएं कबूल हो रहे, बस वो इम्पोर्टेंट है। अब नहीं कबूल हो रहे, क़यामत में कबूल हो रहे, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या, अल्लाह के फैसले से राजी हो जाना, जुस्तजू करने के बाद, कोशिश करने के बाद, दुआ करने के बाद, जॉब की पे मेहनत करने के बाद में, ये साल बिजनेस इतनी मेहनत दबा के करा, फिर भी इतना आया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह मैं राजी हूँ,
इससे और ज्यादा आता तो और खुश होता था, मगर तू नहीं दिया। तेरा फैसला ये है कि इतना ही कमाना, ये साल मेरा टर्नओवर इतना ही रहना, इतना कम ही है। अगर तू चाह रहा है कि मेरे लिए इतना ही है तो मैं इसमें खुश हूँ, क्योंकि ये किसका फैसला है? तेरा फैसला। हालांकि तो चाहा तो 3 गुना ज्यादा भी दे सकता था ये साल, कंपनी में सैलरी भी बढ़ा भी सकता था, बिजनेस प्रॉफिट भी बढ़ सकता, मगर तू कुछ मसलियत के तहत शायद ज्यादा दौलत दिए तो मैं बहक जाऊंगा बोल के शायद अल्लाह ताला अपनी दौलत के लिए रोक दिया होगा। क्योंकि ज्यादा दौलत हो गए तो अपन जो है दिमाग अपना काम की चले जाता, अपन दूसरे लोगों को, गरीबों को चींटियों के जैसा रगड़ देते होंगे। क्या मालूम अपने अंदर वो वीकनेस होंगी, अपने अंदर वो फितरत होंगी, अपने को नहीं मालूम, अपने को बनाए वाले को मालूम है। कुछ लोग गरीबी बर्दाश्त कर सकते हैं, अमीरी नहीं बर्दाश्त कर सकते। कुछ लोग अमीरी बर्दाश्त कर सकते हैं, गरीबी में खुदकुशी कर लेते हैं। तो अल्लाह ताला वैसे लोगों को रहम करके अमीरी रखता। कुछ लोग गरीबी बर्दाश्त कर सकते, अमीरी नहीं बर्दाश्त कर सकते, अमीर बनते थरक जाते, दिमाग पागल हो जाता। तो वैसे लोगों के बेहतरी के लिए रहमत के तौर पे अल्लाह ताला उनको अमीर नहीं बनाता, तकलीफात देता, टॉर्चर देता, प्रॉब्लम देता। तो ये अल्लाह ताला का निजाम है, हम नहीं अंडरस्टैंड कर सकते। मगर हमारा मकसद क्या है? जो अल्लाह ताला फैसला करा उसमें हम खुश हो जाना, चाहे हमारे दिल को पसंद आए ना आए। अगर पसंद आ गए तो आप सहाबियों के लेवल पे है, क्योंकि सहाबियों को अल्लाह ताला कुरान में क्या बोले? रजी अल्लाह ताला। रजी अल्लाह ताला मतलब राजी है वो अल्लाह से राजी है वो लोग, अल्लाह के हर फैसलों से राजी है। अल्लाह उनको गरीब रखे तो भी राजी है, अल्लाह ताला उनको अमीर रखे तो भी राजी है, अल्लाह ताला उनको जंग में कामयाबी दिए तो भी राजी है, औलाद नहीं दिए तो भी राजी है। इसके लिए अल्लाह ताला उनको शान से बोलते हैं कि अबू बकर रजी अल्लाह ताला, वो लोग अल्लाह से राजी है, इसके वजह से वो खुशी से अल्लाह ताला भी उनसे राजी है, इसलिए सहाबियों को रजी अल्लाह ताला अन्हु टाइटल देते। तो ये तो बेहतरीन ईमान है। चलो राजी ना भी हो जाओ, मगर कम से कम मुतमईन तो भी हो जाओ कि ये मेरे अल्लाह का फैसला है, मैं उसके ऊपर छोड़ता हूँ, शायद ये मेरे लिए ठीक नहीं है। क्योंकि मैं वाकई में कई लोगों को देखा, दौलत अंधा बना दी, दीन से दूर कर दी, और जो है दीन से बहुत दूर लेके चले गए। तो उन लोगों को देख के अपने दिल से दुआ निकलती कि काश अल्लाह इनको दौलत ना ही देता, तो शायद ये लोग बेहतरीन नेक सालेहीन सब्र करते हुए, तकलीफ उठाते हुए अल्लाह के इतने नजदीक चले आते थे होंगे कि डायरेक्ट जन्नत में जाते थे। तो इन लोगों के लिए वो बेहतर है, उन लोगों के लिए ये बेहतर है, शोएब के लिए अलग चीज बेहतर है, आदिल के लिए अलग बेहतर है, जुबैर के लिए अलग चीज बेहतर है। जुबैर शोएब नहीं बन सकता, शोएब जुबैर नहीं बन सकता, हालांकि दोनों सगे भाई है। जुबैर का नेचर अलग है, शोएब का नेचर अलग है। शायद जुबैर भाई जो है दौलत के इंतहा में कंट्रोल कर सकते, शोएब भाई नहीं कंट्रोल कर सकते होंगे। शायद जुबैर भाई गरीबी में बेहतर बनते होंगे, नेक बनते होंगे, गिड़गिड़ा के दुआएं करते होंगे, इबादत अच्छी कर सकते होंगे, मगर दौलत आते से उड़ाने के चक्कर में इतने बिजी हो जाते होंगे तो आप बेचारे नमाज भी नहीं पढ़ सकते होंगे। तो मैं एज आदिल मैं क्या चाहूंगा, अरे जुबैर को ये नहीं होना था, ये होना, शोएब को ये नहीं, ये होना। हम एज अ थर्ड पार्टी सोच सकते हैं न्यूट्रल, मगर खुद बंदा रियलाइज नहीं करता। क्योंकि अगर बंदे से पूछे गरीब बनना है या अमीर बनना है, तो नहीं क्या बोलता? अमीर बनना है बोलता, नहीं बोलता, और परेशानी दूर होना बोलता। तो सभी अमीर बनना है तो गरीब कौन बनना? जिसका नेचर जैसा है उसको वैसा देते अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ताला पैदा करे, हर एक को एक नहीं पैदा करे। दो भाई अलग रहते, ऐसा हो सकते हैं, दो भाई से अलग होते, हालांकि परवरिश सेम है, जबान सेम है, लैंग्वेज सेम है, कपड़े सेम है, टेस्ट सेम है, मगर नेचर अलग रहता। कोई जो है अमीरी में बेहतरीन दीनदार बनते, जितनी दौलत आती है उन्हें और अल्लाह के सामने शुक्र अदा करता, उन्हें और रोता अल्लाह के सामने, और अल्लाह का दीवाना बन जाता। अल्लाह मेरे ये दिया, ये दिया, ये दिया, ये दिया बोल के उन्हें और इबादत करता, और खैरात करता, पागल हो जाता, मतलब उतना पीक पे चले आता। कई लोग जो है वैसे नहीं कर सकते, दौलत आते कम हो जाती, इबादत दूर हो जाती है अल्लाह से, तो लोगों के लिए ठीक नहीं है। कई लोग गरीबी में थोड़ी सी भी इबादत अल्लाह ताला बहुत कबूल कर देता। या एक चीज याद रखो, अमीरी में, दौलत में ज्यादा नेकियां करना पड़ता अल्लाह को राजी करने के लिए, गरीबी में कम नेकियां थोड़ा करे तो भी अल्लाह बहुत जल्दी राजी हो जाता, क्योंकि आदमी भूखा प्यासा है ना, तो उन्हें इबादत करना बड़ी बात है। तो कई बार गरीबी की इबादत थोड़ी सी जन्नत में लेके चले आती, मगर अमीरी की इबादत बहुत ज्यादा होना पड़ता, बहुत टनों का होना पड़ता, किलों का होना पड़ता। वो कई बार नहीं कर सकते तो अल्लाह ताला रिजेक्ट कर देते, उसको
उसको जहन्नम की आग में डाल देते हैं। खैर ये कई हदीसों की समरी है, कई अलग अलग सिचुएशंस है, कई मैं आपको हदीस में बता सकता हूँ इसके सपोर्टिंग में, मगर ये जुज है। और पहले भी क्लास में बोला, एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, गरीब थे, दुआ करे, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोले आप प्लीज मेरे को अमीर बनने की दुआ करो, बोले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिक्वेस्ट करे मत करो, जरूरत नहीं है, मगर वो सहाबी जिद करे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए दुआ करे, और वो सहाबी दुआ कबूल हो गए, अमीर बन गए, और अमीर बनते 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 जो है इतने दीन से चले गए कि वो सहाबी नहीं रहे, मुसलमान नहीं रहे, काफिर बन गए। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले थे मत करो, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कैरेक्टर को समझते थे, सहाबी को देखे थे, इन्हें गरीबी में कर सकता, अमीरी ने नहीं बर्दाश्त कर सकता। इसलिए कई लोगों को जो है नहीं बर्दाश्त कर सकते, जितनी अमीरी है उतनी खैरात, उतना अल्लाह का शुक्र नहीं कर सकते इंसान। बहुत मुश्किल है मालूम, गरीबी बर्दाश्त करना, तकलीफी बर्दाश्त करना, गालियां बर्दाश्त करना, और जो है प्रॉब्लम्स बर्दाश्त करना फिर भी आसान है, एक तरीके की मजबूरी में हो जाता, मगर अमीरी बहुत बड़ा आजमाइश है, वो आजमाइश हर एक के बस की बात नहीं है। खैर तो ये भी एक जो है पहले भी ये टॉपिक डिस्कस करें, मगर बहुत इंपॉर्टेंट है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं कि ऐसा कहीं को हुआ, वैसा कहीं को, और मेरे साथ कई मेरे दोस्त साहब मेरे को कॉल करके पूछे मैं ऐसा करा वैसा करा, मेरे क्यों नहीं बनाना अल्लाह ताला, मेरे बिजनेस में कामयाबी क्यों नहीं दे रहा। तो ये जो मैं आंसर दिया ये मैं कई लोगों को देना पड़ा, क्योंकि कई लोग का यही सवाल, क्योंकि कई लोग ये चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सके, उनको लॉजिक समझ में नहीं आ रही, क्यों नहीं मेरे को दे के देखो, बोलो मेरे को अल्लाह ताला को 100 करोड़ दो, बोलो मैं देखो अच्छा बनता बोलते, मगर अल्लाह ताला जानते ना, तुम नहीं जानते अपने आप को, मगर तुम्हारे को बेहतरीन जानते अल्लाह ताला। तो इसलिए जो जैसे हालत में अल्लाह ताला पैदा करे, अफ्रीका की गरीबी में पैदा करा, या तो यूएई का सिटीजन बना के रॉयल फैमिली का करोड़पति बनाए, जो बनाए उसमें अपने को परफॉर्म करना है, बस सीधी सी बात है। ये नहीं वो नहीं, ऐसा टेस्ट होना वैसा टेस्ट होना नहीं है, अल्लाह ताला की बेहतरी पे भरोसा करना चाहिए। चलिए तो नेक्स्ट आयत करेंगे फिर। कुछ सवाल है क्या इस पे? जरा थोड़ा सी अलग बात कर दिया मैं सवाल तो नहीं है सवाल। चलो आयत नंबर 197, इसमें जो है थोड़ा सा मैं कोड वर्ड्स में बात करूंगा, क्योंकि जो है थोड़ी सी एक अलग टॉपिक डिस्कस हो रही, मैं थोड़ा मिनिमम ही रखने की कोशिश करूंगा। कि पहले दौर में सहाबियों के टाइम पे रमजान के रोजों में जो है खाना पानी का परहेज था, और बीवियों के साथ भी जो है फिजिकल रिलेशनशिप्स अलाउड नहीं थे। कब तक? रोजा खोलने के बाद में भी नहीं, रोजा और रात तमाम भी नहीं थे, और पूरे रमजान में भी नहीं थे। तो मगर वो जरा डिफिकल्ट था, अल्लाह ताला जरा सख्ती का मामला करे, जो कि उन लोगों के लिए तकलीफ ज्यादा थी। तो जो है उमर रज़ी अल्लाह से गलती हो गई, और उमर रज़ी अल्लाह अपनी लॉजिक लगाए कि भाई रोजे में जो है दूरी रख सकते, रोजे के बाद में कर सकते बोल के। तो अल्लाह ताला वो चीज को रियलाइज करे, अल्लाह ताला जानते थे, और उमर रज़ी अल्लाह की मजबूरी को समझे, और जो है वो गलती को माफ करे। उमर रज़ी अल्लाह से गलती हुई, और बोले कि आप जो है रोजा खोलने के बाद में पहले के जैसा आप खाना खा सकते, पानी पी सकते, और जिस्मानी चीजों का भी जो है वो कर सकते। तो ये पस मंजर पे जो है आयत नाजिल हुई है। अब आयत को पढ़ के डीप में, रोजे की रातों में अपनी बीवियों से मिलना तुम्हारे लिए हलाल किया गया, हुक्म आ गया, ठीक है भाई, ओके, आपको रियायत दी जाए, पहले नहीं दी गई थी, क्यों? आपको स्ट्रांग बनाने के लिए। अब आप लोग स्ट्रांग हो गए, आप लोग अच्छे सैक्रिफाइस कर रहे, अब ये चीज आपको हटा दी जा रही है, आपको आसानी दी जा रही है। वो तुम्हारे लिबास है और तुम उनके लिबास हो, तुम्हारे तो आप उनके साथ कंफर्टेबल रहना चाहिए। ये आपके लिए रहमत है, बीवी शौहर के लिए बीवी, बीवी के शौहर के लिए शौहर, दोनों के लिए जो है बेहतरीन चीज है। तुम्हारी पोशीदा खयानतों का अल्लाह ताला को इल्म है। यहाँ पे उमर रज़ी अल्लाह के पर अल्लाह ताला बोले तुम जो पोशीदा गलतियां करे, जो नहीं करना चाहिए था, हालांकि उसकी इजाजत नहीं आई थी, वो अल्लाह ताला उसका इल्म रखता है, अल्लाह ताला जानता है, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज जानता है। उसने तुम्हारी तौबा कबूल की, तो उमर रज़ी अल्लाह से गलती होने के बाद में उमर रज़ी अल्लाह तौबा करे, और उनकी तौबा इतनी बेहतरीन थी कि तौबा कबूल भी हुई, और उसके बाद में वो हुक्म कुछ मॉडिफाई करने लगे। तो उसने तुम्हारी तौबा कबूल फरमा कर तुमसे दरगुजर फरमाया, अब तुम्हें उनसे मुबश्शरात की और अल्लाह ताला की लिखी हुई चीजों को तलाश करने की इजाजत है। अब आप वक्त बिता सकते बीवी के साथ,
रमजान की रातों में भी। तुम खाते पीते रहो यहाँ। अब ये टॉपिक खत्म हो गया। अब जो है अब टॉपिक डिस्कशन हो रहा कि सुबह में सहरी कब तक करना, ये एक बहुत बड़ा फिक्स का मसला है। और आप देखो हर जो है कंट्री में अलग अलग कैलकुलेशन होता। 4:20 को फजर का सहर का वक्त खत्म होता। हनफी अलग बोलते, शाफी अलग बोलते, हनफी 20 मिनट पहले रोक देते। इंडिया का अलग टाइमिंग रहता, वो नहीं, इंडिया हर कंट्री का अलग टाइमिंग रहता। यहाँ पे रात है तो वहां पे सुबह है नहीं, जो कैलकुलेशन रहता फजर का वक्त कब तक है, सहर 18 डिग्री। हाँ, तो वो फजर का वक्त कैसा पहचानना, उसके ऊपर कंफ्यूजन है। तो अब उसको कैसा पहचानना, तुम खाते पीते रहो यहाँ तक कि सुबह का सफेद धागा सियाह धागे से जाहिर हो जाए। तो ये एक पुराने जमाने का एक तरीका है पहचानने का कि रात में काला तागा ले लो और अगर सुबह की रोशनी हल्की सी आके वो जो है सफेद दिखने लगे, मतलब सफेद तागा ही है, रात पे काला दिखता ना अंधेरे में, तो हल्का सा सफेद दिखना शुरू करे जब तक आप सहर करना। अब वो जमाने में वो लोगों के लिए काफी था क्योंकि घड़ियां नहीं थे। अब आज के जमाने में उसको कंप्यूटर में चेंज करके सन का 18 डिग्री 17 डिग्री बोलना मुश्किल है। यहीं पे फड्डे हो गए। अल्लाह ताला जो है वेग रखे कि मतलब सफेद से काला सफेद तागा जो है काला दिख रहा था, सफेद दिखना शुरू कर दिया तो रोक दो। अब वो कई बार 5 मिनट इधर उधर हो जाता, 10 मिनट भी इधर हो जाता, तो उसमें हिसाब किताब में ऊपर नीचे हो जाता। तो ये बहुत मुश्किल चीज थी अमल करना वो जमाने के लिए। वो कल्चर में जरा आसानिश था, मगर आज के जमाने में जहाँ घड़ियां एग्जैक्ट रहते 5:25 को शहर खत्म हो जा रहा, आ जाते ना कैलेंडर छप जाते रमजान में, ये नहीं था, अंदाजा था। इसलिए 5-10 मिनट ऊपर नीचे हुआ तो भी जो है फ्लेक्सिबिलिटी है। ये एग्जैक्ट वॉचों का जो है टाइम जो है उतनी जरूरत, उतना सख्ती नहीं है। फिर रात तक रोजे का चलेगा सुबह, फिर रात तक रोजे को पूरा करो और औरतों से उस वक्त तक मुबाशरत ना करो जबकि तुम मस्जिदों में इत्तिकाफ में हो। अब तीसरा हुक्म यहाँ पे आ रहा, जब आप इत्तिकाफ करते मस्जिद में तो वो आखिरी के 10 दिनों में मस्जिदों में बैठते ना, जब तो आपको रात में भी रोजा खोलने के बाद भी बीवी से दूरी अख्तियार करना है, बल्कि ये हुक्म आ रहा। इस तरह अल्लाह ताला अपनी आयतों को लोगों के लिए बयान फरमाता है ताकि वो बचे, गलतियां नहीं करना। तो 3 रूल्स आ गए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज के ऊपर मैं डिस्कस करना चाहूंगा, इतना फसाद हो गया है मुस्लिम कंट्रीज में, स्पेसिफिकली अमेरिका में, जहां हनफी भी है, इंडियन भी है, अरबी भी है, सोमालियन भी। अब सब आ जाते हैं मस्जिद में, इफ्तार साथ करते क्योंकि पूरे कम्युनिटी में एक एक मस्जिद है, कम मस्जिदा रहते। अब फजर सहर कब तक करना, अरबी अलग बोलता है, इंडियन अलग बोलते हैं, बहस बहस बहस। इंडिया में रहता पता नहीं चलता क्योंकि पूरा इंडिया एक ही तरीके से चलता, मगर आप अमेरिका जैसे कंट्री में आ जाते हैं तो आप ये जो कुरान बता रहा सफेद तागा काला नहीं सफेद दिखना शुरू करे, ये जो है प्रोसेस नहीं एक 10-15 मिनट का है। 1 मिनट में सफेद काला तागा सफेद नहीं दिखता, वो उसमें थोड़ा 5-10 मिनट इधर उधर होता, तो वो अल्लाह ताला जो है एग्जैक्ट भी नहीं बना। 5:26 अल्लाह ताला की रहमत भी देखो, क्योंकि इंसान को रियलाइज करने में भी कभी कभी टाइम लग जाता। और खाना खा लेते बैठे हुए है, तागे को हाथ में पकड़ के तो नहीं रखेंगे ना इंसान, देखने में मुश्किल हो जाती थी पहले के जमाने में जब घड़ियां नहीं थे। तो अल्लाह ताला फ्लेक्सिबल रखे तभी इंसान से गलती होता। तो मैं इसमें अल्लाह की एक रहमत समझता हूँ, क्योंकि इंसान की हड़ाबड़ी और वो भी अंधेरे के वक्त में सहर करना, नींद में से उठना, उसको टाइम का पता नहीं चलता, वो नींद आते रहती, खाना खाए नहीं जाता, स्लो रहते, बराबर चावल गर्म पकता नहीं पकता, तो ये सब चीजें होते। मगर अल्लाह ताला को पसंद है कि तुम नींद को छोड़ के सहर के लिए उठे। तो अल्लाह ताला की फ्लेक्सिबिलिटी है कि टाइम जो है एग्जैक्ट नहीं है, थोड़ा 10-15 मिनट इधर उधर हो जाओ, तो इसलिए बहस मत करो। मगर कुछ लोग गांव में फजर की नमाज भी हो जा रही, उजाला भी इतना आ गया कि रोड़ा भी दिख रहे फिर भी खा रहे, ये गलत बात। इस आयत का ये मीनिंग नहीं है कि आप लोग इंतहा पे चले जाए। हाँ, 10 मिनट अगर क्लियर नहीं है, 4:26 के बदले में 4:36 हो गया, तो अल्लाह ताला अंडरस्टैंड करते हैं, और ये वर्ड भी बहुत फ्लेक्सिबली दिया गया। तो इसमें अल्लाह की रहमत को अंडरस्टैंड करना और बहस लड़ाया नहीं करना, हमारा करेक्ट है, तुम्हारा रोजा कबूल नहीं हुआ, हम 4:26 को रोक दिए, तुम 4:36 तक खाए, तो जो है
ये प्रोसेस टाइम का भी जो है फ्लेक्सिबल रखे और जानबूझ के अल्लाह ताला फ्री रखे उसको, ताकि थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए, और इसको अल्लाह की रहमत समझना, मगर लड़ाई झगड़े का जो है तरीका नहीं समझना। तो आज ये आयतों को आज इंशाल्लाह रैप अप करेंगे, कल इंशाल्लाह 188 से कंटिन्यू करेंगे। कुछ अल्लाह ताला। स्पेसिफिक सवाल है तो पूछिए, वरना जज़ाकल्लाह फिर खैर, बहुत अच्छी थी क्लास।